रद्द कराना पंज बंदे की कमेटी कहनी चलो पंज बंदे बोलणगे दूजा बंदा ही नहीं कोई बोलदा साडा अगला प्रोग्राम तो 26 दा हां 26 दा मीटिंग 19 तरीक दी 12 बजे हां 19 तरीक 12 बजे रणनीति 26 तरीक मार्च वो रणनीति बनी हुई है किसानों की मीटिंग करनी है हुण जाके उन्हां ते करांगे हाँ हाँ मीटिंग तो करेंगे एक तो शायद मेरा ख्याल मीटिंग साडी कल 16 नहीं हो जाए ਅਸੀਂ पूरा जोर लाया जी भी ये मुद्दा छेड़ लो वो तो सरकार आई यही गल अगली मीटिंग 19 तरीक की ढलने ही ना ढलू फिर असं लड़ी जाने 26 तरीक का अपना की प्रोग्राम है जी 26 का साडा असं मीटिंग तय करनी मीटिंग तय कर मैं कल थोड़ा बहुत गायका बारे भी गलबात की है कि क्यों जो बार-बार है गायका उत्ते भी जो है जांच दे आदेश दे रहे हो किते ना किते गलत है मैं समझ नहीं ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਾਇਕਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ पंजी समझ घट की मीटिंग बेसिका रही है मैं तेन जानता की क्या सोनू बेसिका रहू बेसिका ही रही है बेसिका ही रही है जानता ही क्या सीगा मैं सोनू कह के गया जी मीटिंग जो मीटिंग निकली है कुछ नहीं निकला तरीक किहड़ी मुकर्रर कीती अगली 19 तरीक करी है 19 तरीक कीती है ਤਾਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਅੱਜ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਐਨਆਈਏ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ नहीं पहला उन्होंने ਉਹੀ रिटर्न लाया ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਫਿਰ ਰੱਖਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਉਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਓ मेरा ख्याल है ਵੱਧ ਚਿਰ ਵਿੱਚੇ किसान ने कोई इधर की तो उसका कोई फायदा नहीं है तो अभी नेक्स्ट मीटिंग कब होगी पुलिस को सर आज सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया गया कोई कमेटी बनाने का आपको प्रपोजल दिया गया कि कमेटी में पिछली बार बनी है कमेटी तो बनी चुकी होती 4 आदमी की जिसमें एक चला गया छोड़ के कमेटी का कोई फायदा नहीं है कमेटी हम लोग मान रहे हैं आपने मांग रहे हैं और मीटिंग में एमएसपी पर चर्चा कितनी हुई खेती कानूनों पर कितनी चर्चा हुई देखिए मेन बात तो खेती कानूनों पर है कि खेती कानून वापस हो उसके बाद पूरे देश के एमएसपी पर चर्चा होगी बात में हो रही है कि मुख्यमंत्री दर्ज होंगे भारत में उसको लेकर चर्चा हो रही है अगले बाबा लड़ांगे लड़ना चाहिएगा पर वो ते आई नहीं ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ बेशक ही है और की कहांगे 26 ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਬਣਿਆ 26 ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀ ਹੈ नहीं सरकार ने मेरा 26 ਨੂੰ देख के सानू मीटिंग ਦਿੱਤੀ 19 तरीक ਦੀ ਅੱਜ 26 ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ वास्ते किसानों की रणनीति रहूगी आगे वास्ते ਦੇਖ ਇੱਕ ਜਣਾ ਬੋਲ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਿ ਕੀ आगे वास्ते रणनीति की ਅੱਗੇ ਵਾ ਤੇ ਰਣਨੀਤੀ ਵਾ 26 ਤਰੀਕ 26 ਹੈਗੀ ਆ 26 ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਾਂਗੇ रुलदू सिंह जी 10 बार निराश रहे हो एक बार अनऑफिशियल मीटिंग हुई है 9 बार भी जो है सरकार ने कोई सिट्टा नहीं दिता अगली मीटिंग च लगता है कोई गलबात बनूगी कि अगली मीटिंग 26 ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਏ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਣ ਤੇ ਨਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਈਏ ਠੀਕ ਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬਦਨਾਮੀ ਬੇਸ਼ੱਕਾ ਗੱਲ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਆ ਸਾਡੀ ਬਦਨਾਮੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਮੰਨ ਜੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਰੱਦ ਕਰਦੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸਰ ਜਿਵੇਂ 26 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆਪਣਾ ਤਿਆਰੀ ਆ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਰ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣੀ ਆਪਾਂ ਸਮਾਰ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਭੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਭੰਗ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾ ਹੋਊਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਭੱਜ ਗਿਆ ਨਾ ਉਹ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੋਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 18 ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 18 ਦੀ ਤਰੀਕ ਕਰ ਲਓ ਮੀਟਿੰਗ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 18 ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਤਰੀਕ ਅਸੀਂ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਦੋਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਛਾ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹਾਂ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਚਰਚਾ ਕਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਰਚਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਪੱਤਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕੇਸ ਬਣਾਉ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਬਣਾਉਣੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਬਹਿਸ ਕਰ ਕੀ ਲਈਏ ਤਿੰਨੇ ਕੇਸ ਕਾਰਜ ਕਰੋ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਬਹਿਸ ਫੇਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਗੱਲ ਹੋਈ ਫਿਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਪੂ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਰਵੱਈਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਰਵੱਈਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਕਹੂੰਗਾ ਭੋਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸਾਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮੰਨ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਉਹ ਸੁਰੇਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤਾਹਾਂ ਤੋਂ ਦਵਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਖੌਲ ਸਾਨੂੰ ਕਹਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਤਾਹਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਦਵਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ
ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਅੜੀ ਨਾ ਕਰੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹਿੰਦੇ ਦੋਨੇ ਉਧਰੋਂ ਉਧਰ ਹੀ। ਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ? ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹਜੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਗਾਤਾਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬਾਈਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਗੂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਓਵਰਆਲ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆ ਉਹ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗਾ ਤਾਰੀਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ, ਅੱਡ-ਅੱਡ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੋ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲੜਾਈ ਆ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਤਲਖੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁਣ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹੀ ਗੱਲ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਕਹੇ ਹਰ ਇੱਕ छोटी कमेटी बना लो जी, फिर कोई फैसला कर लेंगे। यानी सरकार अजे मूड च नहीं, ऐ लगता भी सरकार अजे मूड ਨਹੀਂ ਉਗਰਾਹੀ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ, ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗੀ ਐਮਐਸਪੀ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਲੀਗਲੀ ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ ਉਹਦੇ ਚ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਲੀਗਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਸ ਤੇ? ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁਣ ਕਦੋਂ ਹੈ ਜੀ? ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਕਰੀਏ ਕੀ ਭਰਾਵਾ? ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ ਕਦੋਂ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ, ਗੈਦਰਿੰਗ 19 ਤਰੀਕ ਦੁਬਾਰਾ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖ ਕੇ 12 ਵਜੇ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਉਣਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਝੋ ਹੁਣ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਈ ਵਾਰ, ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਦਬਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਦਿਖੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ। ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਸੀਗੇ ਅੱਜ? ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਬਾਈਟ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਗੱਲਾਂ ਉਹੀ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿ ਪਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਉਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਦੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। 26 ਜਨਵਰੀ ਜੋ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਦਲਿਆ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੀ? ਕੋਈ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ? ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਦੱਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇ ਸੱਦਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਸਦੇ ਵਰਨਾ ਉਹਨੇ ਸੱਦਣੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸਰਕਾਰ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇ ਫਿਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੂਡ ਬਣੇ ਉਹਦੇ ਚ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅਬ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਨਿਕਲ ਗਏ? ਨਹੀਂ ਅਬ ਮੈਨੂੰ नहीं निकलता, ये अब मनु निकल गया तो फिर तो मतलब समझ लो। रलिया साहब लगातार तारीख पे पै रही है। एक मिनट, जगजीत सिंह इज विद अस। सर ये बताइए, जो मीटिंग हुई है आपकी आज 4 घंटे से ज्यादा मीटिंग चली है, थोड़ी देर के लिए आप लोग का खाना भी हुआ। आज एक अच्छी बात ये रही कि आज आप लोगों ने खाना खाया, पिछली बार स्किप कर गए थे, गुस्से में थे आप लोग तो। और दूसरी बात, निष्कर्ष फिर कुछ नहीं निकला, क्या कहेंगे इस आज की पूरे चर्चा के बारे में? देखिए, आज की चर्चा में से कुछ निकल कर बाहर नहीं आया। सरकार वहीं के वहीं है। सरकार कानूनों को रिपील करने की बजाय इनमें संशोधन के मामले में थोड़ा ज़्यादा जोर दे रही है। और हमारी ये थी कि अगर आप अभी इसको छोड़ो एक साइड पर, एमएसपी पे बात कीजिए कि एमएसपी पे क्या कहना चाहते हो। उस पर भी सरकार की बार बार बात ये थी कि पहले कानूनों की बात कर लीजिए, बाद में एमएसपी की बात। कानून की बात अब पे करने लगे। हाँ, तो मामला ये हुआ कि हमारी फिर लास्ट में बात यही थी कि अगर आप इन कानूनों को रद्द करते हो तो हमारी बात है आगे बढ़ सकती है, वरना नहीं बढ़ सकती। एमएसपी पे भी तैयार नहीं हुई सर? नहीं, अभी कहीं पे भी सरकार तैयार नजर नहीं आ रही। सरकार वहीं के वहीं है। तो बोला क्या आपसे कृषि मंत्री ने, क्या बोला आप लोगों से? और साथ ही साथ वहाँ 2 और मिनिस्टर थे, कॉमर्स मिनिस्टर, एक और यूनियन मिनिस्टर है, उन लोगों ने क्या आप लोगों से बोला? सब बैठे ही हुए थे क्या? नहीं, बार बार ऐसे मान लीजिए बैठे रहे हैं। और क्या उसमें हमारी बातचीत चलती है। बातचीत में उनका वही कि कानूनों के पक्ष में बात करें, जैसे एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है जी, उसके बारे में बातचीत करते रहे। तो हमारी ये थी कि जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है उसमें तो कुछ रिपील करने की भी बात नहीं है। उसमें तो आपने संशोधन किए हुए हैं, वो वापस लेने हैं, वो वापस ले सरकार।
तो फिर दो कानूनों की बात रह जाती है। ठीक है। तो उस पर भी सरकार का मतलब यही है कि जरूरत थी, इसके अच्छा किया है, आपको क्या बुराई लगती है, Essential Commodities Act को लेकर। ऐसी बातें। तो हमने ये रखी बात कि जैसे इस जो आपने अमेंडमेंट्स की हैं इस तरीके से तो आम आदमी के हाथ से निवाला छिन जाएगा। ठीक है। तो अब क्या 19 तारीख डेट कैसे फिक्स हुई सर? हाँ 19 तारीख देखिए, हमने जब यहाँ पर बात आई तो हमारा ये था कि आपका सरकार का आज कहीं पे कुछ निमेड़ा करने का कोई इरादा नहीं नजर आ रहा। ठीक है। इसके लिए हमारा ये है कि जब सरकार की मर्जी हो हमें बुला लेना, हम मतलब जाएंगे। तो उस समय फिर उन्होंने हमें मतलब 19 तारीख दी। जब 19 तारीख दे रहे थे तब भी हमारी ये बात थी कि 19 तारीख तब दिए अगर आपने कुछ करना है तो, अगर नहीं कुछ करना तो देने क्या की बोला फिर? तो फिर वही तरीके करेंगे, अल्टीमेटली आना तो पड़ेगा ही, आएंगे ही आप। करेंगे। अच्छा 18 तारीख को कोर्ट की तारीख भी है एक आप लोगों की, 26 जनवरी की परेड के लिए। कोर्ट की तारीख है, कल हमारी बैठक होगी, उस बैठक में फैसला लेंगे कि कैसे करना है, क्या करना है। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣਗੇ ਜੀ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣਗੇ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਦਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਹਿੰਦੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ। ਇਹ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਬੱਸ ਭਰ ਚੁੱਕੀ ਆ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਬੱਸ ਭਰ ਚੁੱਕੀ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਈਟ ਲੈਣਾ। मैडम आप चलेंगे? मैं भी चलो यार, ये सीट मैडम इकट्ठे ही कर लेना हिंदी पंजाबी। ये कौन सी हिंदी में? दिस इज ओडिशा का तो बिगेस्ट। उड़ीसा वाले ओडियारो बुझी बनाए। हाँ। आज का ये जो बैठक चला, ओडिया में पूछ आज बैठक को नहीं मैडम कौन कहे केते दूर आपण खुशी होइछंदी बा संतुष्ट होइछंदी? मुझे लगता है चर्चा जिस ढंग से हुआ है उसमें काफी प्रोग्रेस है। जिस विषय पे हुआ है शायद उसमें प्रोग्रेस बहुत ज़्यादा नहीं दिखेगा आज, मगर दोनों पार्टी, एक तरफ से यूनियंस और दूसरी तरफ सरकार का जो लोग बैठे हैं डेलीगेशन में, दोनों ने ये कमिट किया है कि इस आंदोलन का परिष्कार तभी निकलेगा जब सरकार और किसान संगठन के लोग डायरेक्टली आपस में बातचीत करेंगे। इसका मतलब ये हुआ जो सुप्रीम कोर्ट कहते जा रहा है कि आप लोगों को बात नहीं करना आता है इसलिए हम इसमें घुसेंगे, वो वाली बात पे यहाँ पे एक दूसरा नतीजा निकला। दोनों ने कहा कि हम आपस में सीधा बातचीत कर सकते हैं। लेकिन ये जो बैठक के बाद बैठक, फिर तारीख के बाद तारीख चल रहा है, इसको लेके थोड़ा जो हड़ताल कर रहे किसान लोग ने वो भी अभी थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड हो गया। लेकिन ये कितना दिन तक चलेगा ऐसे? ये किसान जो आए हैं वो फ्रस्ट्रेटेड नहीं है, वो 6 महीने के लिए रेडी होके आए हैं। जो मीडिया देख रहा है, बाकी लोग देख रहे हैं, वो फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। उनको भी फ्रस्ट्रेट होने की जरूरत नहीं है। इसका हल निकलेगा और उस दिन इसका हल निकलेगा जब सरकार मानने लगेगी कि अगर वो रिपील करेंगे, इन कानूनों को रद्द करेंगे, उनका अपमान नहीं मगर इंडिया का लोकतंत्र की जीत होगी। अगर सरकार वो मानेगी उस दिन इसका हल निकलेगा। धन्यवाद। हाँ मैडम नमस्कार जी। कुरुगंटी अंदर उल्टा कुरुगंटी। मैडम हम मैं भी इसमें जाना है। चलो फिर ठीक है। मैं मैडम इधर ही चलदा यार, बस च चलदा, बस च ही करते हैं फिर। लो भाई हिंदी वाले फिर सुनो, मैं हिंदी च भी सुना देना। नमस्ते मैम। नमस्ते। आपको रवीश कुमार जी ने फोन किया था? मेरा ना दूसरा बंद हो गया मोबाइल, मैं उनसे बात उन्होंने किया था, रवीश कुमार जी ने फोन किया था। किया था ना? मुझे आपने नंबर तो दे दिया था, लेकिन मैं उनसे दोबारा से बेनती कर लूँगा। चलो कोई बात नहीं मैडम। मैं स्पेशली फोन करके पूछा मुझसे और मैंने उनको वही मैसेज डाला, तो वो नंबर काम नहीं करता है। नहीं, वो मेरा ना बंद हो गया था, वो मोबाइल निकल गया था। मैं अभी कर देता हूँ मैडम, मैं थोड़ा सा लाइव कर दूँ, क्योंकि लगातार पंजाब वाले कहते हैं कि हिंदी में करो, लेकिन आप तो इतनी भाषाएं जानती हैं, मैं तो आपके पास ट्यूशन रखनी पड़ेगी।
आज मीटिंग में क्या हुआ है, किस तरीके का रवैया रखा आपका सरकार का? देखिए, आज का मीटिंग में जो अच्छी बात हुई, वो जो बातचीत का माहौल होता है ना, वो पॉजिटिव रहा है। और ਬਈ ਗੇਟ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ ਵੜੋ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਆਂ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੁੰਦੇ ਰਹੋ ਫਿਰ। नहीं, 1 मिनट, ये बस निकल रही है हाँ जी, नहीं, किसको तीनों मिलके निकल। किसको बुलाना मैडम? हरिंदर को, दर्शनपाल जी को, ये जगमोहन। हरिंदर जी, जगमोहन जी, दर्शनपाल जी, आ जाओ आप। सो लगातार हाँ भाई, मैं बहुत बार देखा। चल आ जा यार, तुम आ जा मैडम। थोड़ी सी मैडम आज करें शुरू आते हैं चलो भाई ने तमाम किसान नेता जो है वो इसी बस में आराम से पकड़ेगा। आशीष नहीं, ये अभी रुकेंगे क्योंकि तीनों बस मिलके ही चलेंगे। आप रुकिए। आप मैम क्या लग रहा है, सरकार 10 दौर की बातचीत, नतीजा तो कुछ निकल नहीं रहा है, क्या लग रहा है सरकार की क्या प्लानिंग हो सकती है? देखिए, आज एक अच्छी बात जो निकल के आई है वो है कि सरकार ने और किसान संगठनों ने ये तय किया है कि इस आंदोलन का हल इसी बात से निकलेगी कि ये दोनों सीधा डायरेक्टली एक दूसरे के साथ संवाद जारी रखें। और दोनों ने कमिट किया है कि ये संवाद तो नहीं रुके। तो वो एक मैम ऐसा क्या है, 10 दौर की बातचीत लंबी बातचीत होती है, 1.5 महीना 1 महीना से ज्यादा आंदोलन हो रहा है, 100 से ज्यादा लोग की मौत हो चुकी है, और कितना बातचीत चाहते हैं आप लोग? पूरा देश जानना चाहता है कि आखिर होगा क्या? आप ये बात को सरकार से पूछिए, कितना दौर बातचीत चलना चाहते हैं। जो लोग ठंड में बैठे हैं। मैडम पहले तो आप बताइए, आप कितनी भाषाओं में इंटरव्यू देते हैं भाई? मैं तो सिर्फ आप इंग्लिश बात कर पाती हूँ वो हिंदी, इंग्लिश और मेरी मातृभाषा तेलुगु में, मगर जो मैं भाषाएं समझ लेती हूँ वो बहुत सारे हैं। मैं तमिल समझती हूँ, कन्नड़ा समझती हूँ, मैं ओडिया समझती हूँ, गुजराती समझती हूँ, पंजाबी समझती हूँ। तो मुझे आप बताइए मैडम, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मैं अलग से चीजें, हम भी आप जैसे बनना चाहते हैं। मैं MA इन कम्युनिकेशन मैंने किया है। मुझे डेवलपमेंट कम्युनिकेशन में मेरा स्पेशलाइजेशन है, और पत्रकारिता वो मैंने सीखा है, और फिल्म मेकिंग, डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग वो मैंने सीखा है। तो आपने पत्रकारिता की भी है? मैं जहाँ सीखी थी। नहीं, मैं थोड़े साल के लिए आफ्टर माय MA डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग में इन्वॉल्व थी, मगर साथ ही साथ गांव में महिला किसानों के साथ काम करती थी मैं। ऐसे एक जगह में जहाँ पे वो महिला किसान खुद अपने लिए एक रेडियो स्टेशन चलाते हैं, और उनका खुद एक मीडिया यूनिट है जहाँ पे वो फिल्म, अनपढ़ महिलाएं, दलित महिलाएं अपने मुद्दों के ऊपर फिल्म बना के बाकी दुनिया को दिखाते हैं। ये कर्नाटका में होगा? ये तेलंगाना में है। तेलंगाना में। तो आप बेसिकली कर्नाटका से हो? मैं कर्नाटका में रहती हूँ, मगर मैं ओरिजिनली हूँ आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से। तो आप पूरा देश का भ्रमण करते रहते हो। अब आपने पहले से दिल से बताना कि कितना आंदोलन अब फैल चुका है उधर जहाँ पे हमारी पहुंच नहीं, हम तो नॉर्थ के आगे, उत्तरी भारत के आगे, यहाँ तो लगभग काफी कुछ फैल चुका है, और उसका श्रेय अलग अलग संगठनों को जाता है जो सभी यहाँ दिखते भी नहीं है, और सरकार उनको बातचीत में बुलाता भी नहीं है। जैसे ऑल इंडिया किसान महासभा बोल के, AIKM बोल के जो है, उनका तो बिहार में, जिस बिहार का उदाहरण बार बार हम देते हैं, जिसका नियंत्रण की व्यवस्था को तोड़ दिया गया था 2006 में ही, उस बिहार में लगभग 40-45 जगह में पक्का मोर्चा आज के दिन लगा हुआ है। और आपने शायद ये भी देखा है कि एक हफ्ते पहले पटना में 25,000 लोग इकट्ठा हुए थे, और पुलिस ने लाठीचार्ज किया है उनके ऊपर, और किसी का सर फोड़ गया, वो सब हुआ था। तो मैं बिहार का उदाहरण दे रही हूँ, मगर कोलकाता में और बंगाल में ये चल रहा है। ऐसे ही तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में चल रहा है। बाकी जो उत्तर भारत के राज्य है, वहाँ के लोग तो सीधा दिल्ली के बॉर्डर्स पे ही पहुँच रहे हैं, मगर साउथ में लोकली बहुत कुछ चल रहा है। नहीं, थोड़ा सा जियोग्राफिकली बताइए, क्योंकि लोग पूछते हैं कि दिल्ली में किसान क्यों नहीं पहुंच रहे साउथ के, उसके बारे में। हम तो पहले से कहते आए हैं कि जब सितंबर 27 को ही
सितंबर 27 की बात मैं कर रही हूँ, सॉरी अक्टूबर 27 की बात, आई एम सॉरी, अक्टूबर 27 को जब रकाबगंज गुरुद्वारा से एक कॉल दिया गया था कि अब दिल्ली चलो, इन कानूनों को रद्द कराना है और एमएसपी का कानून एक बनवाना है, तब हमने क्लियरली बोला था कि जो 5-6 राज्य दिल्ली के आसपास के हैं वो दिल्ली की कूच करें, मगर बाकी जो किसान है इस देश के, उस कॉल में ही कहा गया था कि आप लोकली आपका प्रोटेस्ट करो, क्योंकि कोविड का संदर्भ उठाते हुए, मौका उठाते हुए सरकार ने तो रेगुलर ट्रेन्स कैंसिल कर दी, बहुत कम ट्रेन्स चल रहे हैं और जनरल कंपार्टमेंट्स नहीं चलते हैं। तो जो किसान होते हैं, खास करके साउथ इंडिया के और पूर्वी भारत के, उनके पास इतने संसाधन नहीं होते हैं कि ट्रैक्टर ट्रॉली लेके दिल्ली तक आ सके। तो पहले से ही ये कॉल ही ऐसा था कि 5-6 राज्य दिल्ली जाओ, बाकी लोग लोकली प्रोटेस्ट करो। आज भी जारी है वो बात। तो आप लगातार, ये तो आपने बताया, लगातार आप देख रहे हो, आप लगातार मीटिंगों के अंदर बैठते हो मैडम, सरकार का और आपका लगातार है, क्या आपको लगता है कि टाइम पास की नीतियां 9 दौर की बात सीधी हो गई, एक ऑफिशियली अनऑफिशियली होगी, 10 बार बात हो गई है, आपने सब कुछ आप पढ़ भी सकते हो, आप इंटरनेशनल मीडिया से बात करते हो, नेशनल से करते हैं। तो थोड़ा बहुत सरकार कर रहा है, इसलिए कर रहा है ताकि उनको लगता है कि कहीं और से हल निकलेगा। उन्होंने जो सोचा कि सुप्रीम कोर्ट से हल निकल सकता है, वो कोशिश उन्होंने किया। पहले ये कोशिश किया कि शायद लोग थक जाएंगे और वापस घर चले जाएंगे, और लोगों ने दिखाया कि हम 2 महीने हो गए, जाने जा रही है, फिर भी हम बैठे और लगातार तो सरकार की पूरी कोशिश तो रही है कि लोग दिल्ली तक ना आए, और आने के बाद भी कहीं न कहीं टालते हुए थोड़ा और ये आंदोलन अपने आप से खत्म हो जाएगा वाली उनकी जो उम्मीद है वो दिख रहा है, और हर बार वो प्लान फेल भी हो रहा है। क्या आपको लगता है जैसे लोकतंत्र में लोग बड़े होते हैं, जो लोकतंत्र लोगों के लिए लोग ही बनाते हैं, लोग नुमाइंदे चुनते हैं, लोगों की सरकार होती है, और लगातार वो जो चल रहा है, आपको क्यों लग रहा है कि चाहे जेपी आंदोलन ले लो, चाहे अन्ना हजारे आंदोलन है, चाहे कुछ भी आंदोलन है, चाहे कितनी भी सरकारें थी, लेकिन इतनी अड़ियल मुझे लगता नहीं वो थी। क्या इन पे कोई किसी कॉर्पोरेट का दबाव है, ये क्या दबाव है जो सरकार झुकने को तैयार? मैं तो उल्टा कहूंगी, दूसरे आंदोलनों में सरकारों को इतना भी प्रतिक्रिया नहीं देना पड़ा, और ये इस आंदोलन का पॉजिटिव फीचर है। इस आंदोलन की शक्ति इस बात में है कि सरकार को बार बार बातचीत करना पड़ रहा है, यहाँ से भाग के कहीं नहीं जा पा रहे हैं वो। बाकी आंदोलनों में लोगों को इकट्ठा होने के पहले ही नेताओं को अरेस्ट कर दिया था, कहीं पे जेल में भी अन्ना आंदोलन में भेज दिया था, ये सब हुआ था ना बाकी आंदोलनों में। तो ये मैं सोचती हूँ सभी आंदोलनकारियों को, खास करके जो दिल्ली के बॉर्डर्स में जो बैठे हैं, जिनको थोड़ा बहुत फ्रस्ट्रेशन हो रहा है कि इसमें से कुछ नहीं निकल के आ रहा है, उनको ये समझना चाहिए कि इस आंदोलन में जो शक्ति है, जो सरकार को यहाँ तक झुका पाई। देखिए, किसी कानून में कानून बनने के तुरंत बाद कभी अमेंडमेंट्स नहीं होते हैं, उसको लागू करने का कई साल के बाद ही ये सब होता है। इस आंदोलन ने कम से कम सरकार को इतना तो झुकाया कि सरकार के लोग संशोधन की बात करते हैं, इतना तो झुका पाया कि सुप्रीम कोर्ट कहता है सस्पेंड कर देना चाहिए। तो किसी को भी फ्रस्ट्रेट होने की ज़रूरत नहीं है। शांतिपूर्वक ढंग से जिस सत्याग्रह को हम लोगों ने छेड़ा है, इसका जो प्रतिफल होते हैं, इसका जो रिजल्ट्स होते हैं, वो बिल्कुल पॉजिटिव होंगे और जरूर हमको प्राप्त होगा। जैसे मीडिया आप भी करता हूं, मैं मीडिया की बहनें भी दिखा देता हूं लगातार। एक मिनट इन्हां दे उत्ते प्रतिक्रिया लेना, जिवें बार एग्जांपल मैडम सारियां मीडिया चैनल लगभग है ना, तो जैसे मीडिया का रूल है, चाहे पहले वाली मूवमेंट ले लो, अन्ना मूवमेंट ले लो, तब बोल रहे थे कि चाहे 10,000 का वहाँ पे इकट्ठ था रामलीला ग्राउंड में, इतना फैलाया कि ये तो लोग पार ला देंगे, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, बड़ा पॉजिटिव था। चाहे
बाद में कुछ भी कहे राजनीतिक तौर पे किसी पार्टी को खत्म करने का दूसरी पार्टी ने किया था, लेकिन इसमें मीडिया का जो नेशनल मीडिया का रोल है, 1-2 चैनलों को छोड़ के लगातार कॉरपोरेट मीडिया बन गया है। ये आपको नहीं लगता है कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच और जो चौथा थंब है मीडिया, वो अपना जिसकी रैंकिंग भी इतनी नीचे गिर गई है कि कई अनडेवलप्ड नेशनों से भी नीचे गिर गया, उनके बारे में क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, मीडिया का जगत जो बदल गया है उसके हिसाब से भी ये सब देखना पड़ेगा हमको। जिनके खिलाफ आज की आंदोलन में हम अदानी अंबानी की बात कर रहे हैं, कोई बात नहीं, देखिए उन्हीं के चैनल से, उनका तो मीडिया ओनरशिप है कई मीडिया हाउसेस का, तो हमको ये समझना चाहिए जो हम देख रहे हैं मीडिया जगत भी बदल गई है, मगर उसी संदर्भ में हमको ये भी पहचानना है कि आप जैसे लोग, जैसे गुरप्रीत कोटली जी है, और सोशल मीडिया है जहाँ पे हर सिटीजन को एक राइट बनता है अपनी बात रखने का। हमारे पास दूसरा मीडिया है, हालांकि वो मीडिया पूरा हमारे कंट्रोल में नहीं है, मगर हम दूसरे तरीके से भी इसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो जो गोदी मीडिया कहा जाता है, जो एक मेन स्ट्रीम मीडिया में हमको कवरेज नहीं मिल रहा है, ज़्यादा चिंता उसकी भी नहीं करनी चाहिए। अंत में जाके इस आंदोलन का स्ट्रेंथ कोई मीडिया से नहीं है, जो जनता जुड़ रही है ना, जो सच्चाई वाले किसान जुड़ रहे हैं ना, जो शांतिपूर्वक किसान जुड़ रहे हैं ना, इस आंदोलन का स्ट्रेंथ वहाँ से है। और जब तक वो बैठेंगे सरकारों को मानना पड़ेगा। और मैं यहाँ तक जाऊँगी कि सरकार को ये भी नहीं सोचना चाहिए कि सरकार को झुकना पड़ रहा है, हमको भी नहीं कहना चाहिए, उनको भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए। जिस दिन इस आंदोलन को सफलता प्राप्त होगी ना, वो लोकतंत्र की सफलता है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.